माननीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन से पहले किस स्थिति में थी, इस पर जरूर हम लोगों को थोड़ी सी समीक्षा करने की जरूरत है। बेरोजगारी 45 साल पे की अपने सबसे बड़ी चरम सीमा पे थी। किसानों की आय 40 सालों में सबसे कम वृद्धि हो पाई थी और मार्च 2020 में खपत में 10 सालों में सबसे कम वृद्धि पाई गई थी और इसका प्रमुख कारण था कि तेजी से महंगाई बढ़ रही थी और उसी तेजी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही थी। पिछले 6 सालों में नोटबंदी, जीएसटी का खराब क्रियान्वयन और अस्थिर नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बद से बदतर होती चली गई। मान्यवर, while COVID-19 case curve rapidly rose in every state and every union territory of the country, the GDP collapsed, with April-June recording a 23.9% decline as compared to the same period in the year before. While every economy has faced decline due to COVID-19, the Indian economy saw the steepest decline of any group of 20 countries. And now I want to come to the supplementary demand of grants for Labor and Employment Ministry. इसमें मान्यवर 4,374 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री गरीब योजना के लिए, कल्याण योजना के लिए आवंटित किया गया है। सरकार की धमाकेदार हेडलाइंस में आता है कि 42 करोड़ लोगों को अब तक मदद की गई है, लेकिन इस दावे को गहराई से जांचने की जरूरत है। मान्यवर, 2 करोड़ 81 लाख वृद्धा, विधवा और दिव्यांग गरीबों को मात्र 1,000 रुपया दिया जाता है। क्या सरकार ये समझती है कि 1,000 रुपये के अंदर लॉकडाउन में ये लोग गुजारा कर पाएंगे? 20.6 करोड़ लोगों को जनधन खाते में प्रतिमाह 500 रुपया दिया जाता है। क्या सरकार ये समझती है जो ये 500 रुपया एक दिन का मतलब कि 16 रुपया 66 पैसा, क्या सरकार ये समझती है कि 16 रुपया 66 पैसे में ये जनधन योजना है कि हमारी महिलाएं अपना जीवन यापन कर पाएंगी? माननीय 2 करोड़ 66 लाख प्रवासी मजदूरों को 5 किलो अनाज प्रति महीने 2 महीने के लिए दिया गया, लेकिन मई के अपने आत्मनिर्भर पैकेज में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि इस पैकेज से 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जिस हिसाब से अभी सिर्फ और सिर्फ 1/3 लोगों को फायदा हुआ है। बाकी 2/3 लोग अभी भी जो है इस नीति का फायदा उठाने के लिए ललाहित हैं। इसके साथ साथ मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि इसी लेबर और एम्प्लॉयमेंट बजट में हमारे यहाँ के बुनकरों और खासतौर से पूर्वांचल और अंबेडकर नगर के बुनकरों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है और यहाँ तक कि बिजली विभाग के लोग आए दिन उनके साथ जबरदस्ती करने का काम कर रहे हैं। अंडर सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, Ministry of Statistics has been granted 30.4 crores for the new scheme, National Program for Improving Quality of Statistics. I would like to ask the government to clarify, will we now see the real data on unemployment, GDP, farmer suicides, and will we finally get a database on migrant workers? Over the last 6 years, the central government has worked to weaken the financial autonomy of the states, and this crisis has culminated during the pandemic when the GST compensation due to the states stands at 1 point. Sir, I'm about to conclude. I have Yes. 7 minutes, sir. Please. No. GST compensation of the states. I'm not going to get into too much detail because I have very little time. But as I know, as it stands today, the roughly 2.35 lakh crore is still fallen short, and the state and the finance minister really needs to look into this. I have 2 more points on demands of grants, and I'll make that and I'll conclude. Ministry of Railways. In the supplementary of Ministry of Railways, 620 crores has been granted in COVID emergency response and health systems. It is appalling to see that the Railway Ministry has recently accepted that 97 people have died while traveling on Shramik trains till 9/9/2020. In May's newspaper documented, 4-year-old died on a train from Delhi due to heat. So I'm about to conclude. Please conclude. And after all this, starvation and suffering migrant workers were charged ticket fares. Finally, and one more thing. In Ambedkar Nagar, because of COVID, 2 trains has been suspended, of which I want to speak later on because there's less time, but I will conclude now that अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी धन ये सदन सरकार को देगा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में, उस धन
मेरी उम्मीद है कि उस धन के वो धन गरीबों के हाथों में जाएगा ताकि ताकि सर आई एम अबाउट टू कंक्लूड, ताकि वो जो है उसका फायदा कर पाए। यह सच्चाई यह है कि सारी की सारी सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा पे दे दी जा रही हैं। हाल में ही यूपी सरकार ने प्रस्ताव किया है कि सरकारी नौकरियों पर 5 साल की संविदा पर काम करना अनिवार्य होगा, जो कि नौजवानों के साथ विश्वासघात है। नौजवान के सम्मानजनक आय दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता कमजोर लग रही है। शायद सरकार अपना वादा भूल गई है, लेकिन देश भर के करोड़ों नौजवान, सर आई एम कंक्लूडिंग, दिस इज द लास्ट लाइन, देश भर के करोड़ों नौजवान, खासकर अंबेडकर नगर और उत्तर प्रदेश के युवा अभी भी, खासकर अंबेडकर नगर और उत्तर प्रदेश के युवा अभी भी आशा और प्रतीक्षा में बैठे हैं कि हर नौकरी घर घर पैसा आने का काम होगा। लेकिन मान्यवर ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। सर आई एम अबाउट टू कंक्लूड, जस्ट वन लास्ट दिस थिंग। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि एक्ट ऑफ गॉड ने एक बहुत ही अच्छा मौका माननीय वित्त मंत्री को दिया है कि वो एक नए सिरे से अपना अर्थव्यवस्था को सुधारने में आरंभ करे। सर आई एम कंक्लूडिंग, मेरा आदरणीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि अर्थशास्त्रियों और सभी Yeah, you always saying concluding, but you are not concluding. Okay. One word. मेरा मित्र मंत्री से यही निवेदन है कि सभी राज्य सरकारों और अर्थशास्त्रियों को निष्पक्ष रूप से साथ लेकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था को गढ़ने का काम करें, जिससे शिक्षा, चिकित्सा और नौकरी हर भारतीय को समान रूप से मिले, सामान्य रूप से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।